ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यज्ञानत्वाना पुनर्मोहम् इवां यस्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यासि आत्मनि यथो मयि। यज्ञानत्वाना पुनर्मोहम् इवां यस्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषानि द्रक्ष्यासि आत्मनि यथो मयि। यज्ञानत्वाना पुनर्मोहम् इवां यस्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि यथो मयि। Yes, anybody would like to read the shloka? They can. यत् पुनर्मोहम् एवं यशसि पाण्डवा एनानि भूतानि येषानि द्रक्ष्यसि आत्म अतो मयि। Okay, next. Anyone else? Okay, translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Okay, Asta, no problem. Having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge, you will see that all living beings are but part of the Supreme, or in other words, that they are mine. हम लोगों ने पढ़ा था how to take shelter of spiritual master, how to inquire, how to learn about absolute truth. Now we'll be having further. क्या बोले? Having obtained real knowledge from a self-realized soul. पहला स्टेप क्या था कल वाले में कि we are approaching the spiritual master and we are learning about truth from him. ठीक है. अब after obtaining real knowledge, ठीक है, अब ज्ञान लेने के बाद में क्या होता है? अब ज्ञान तो ले लिया सेल्फ रियलाइज सोल से, उसके बाद क्या? यू विल नेवर फॉल अगेन इनटू सच इल्यूजन. जब आप एक सेल्फ रियलाइज सोल के अंदर रह के उनसे ज्ञान अर्जित करते हो और भक्ति पथ पे चलते हो, सो देयर इज नो वे you ever fall again into such illusion. ये किसके वर्ड्स हैं? कृष्णा के. For by this knowledge you will see that all living beings are but part of the supreme, or in other words that they are mine. क्योंकि आप ये रियलाइज कर पाओगे, ज्ञान मिल पाएगा कि हर जीवात्मा किसकी है? They are all part and parcel of Krishna. They are all belong to Krishna. जब अब इसका क्या मतलब है? अब अगर हम जान भी लें कि हर कोई कृष्णा से बिलोंग करता है, हाउ दिस थिंग कैन हेल्प अस नॉट टू फॉल डाउन? कौन बताएगा ये चीज हमें कैसे हेल्प करती है फॉल डाउन ना होने पे? यस, कोई बता सकता है? That means if we see everything in relation with Krishna, so that means we are able to see Krishna everywhere, isn't it? हर चीज को हम कृष्णा के रिलेशन में देख पाते हैं. सो हम हर चीज में मतलब कृष्णा को देख पा रहे हैं, उनको अनुभव कर पा रहे हैं. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हिम एंड वी आर एक्टिंग फॉर हिज प्लेजर देन, isn't it? And वहां पे द्वेष नहीं आ जाता, फिर किसी से हम द्वेष नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं. We are living in a loving spirit. As says, when we really start loving Krishna, we start loving everything because everything is relation with him. और जब सब कुछ भगवान का है, हमें ये भी समझ में आता है कि इसका मतलब मेरा कुछ नहीं है, और मेरा कुछ नहीं है तो मतलब मास्टर कौन है? भगवान है. और फिर मैं कौन हूँ? मैं दास हूँ. और मैं किसका दास हूँ? भगवान कृष्ण का. So means this realization when we have, there is no way we ever fall into the illusion. ठीक है. So we'll read the purport. The result of receiving knowledge from a self-realized soul, or one who knows things as they are, is learning that all living beings are part and parcel of Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. The result of receiving knowledge from a self-realized soul, or one who knows things as they are, is learning that all living beings are part and parcel of Supreme Personality of Godhead. कि सभी किसकी part and parcel है? भगवान की. The sense of an existence separate from Krishna is called Maya. और जब भी हम सोचते हैं कि हम भगवान से अलग हैं, भिन्न हैं, तो क्या है? This is called Maya, illusion. और Maya means that which is not. Illusion क्या होता है? Maya मतलब मा not, और या means this. This is not. So Maya means that which is not, means illusion. ठीक है, जो चीज है नहीं. Some think that we have nothing to do with Krishna, that Krishna is only a great historical personality, and that the absolute is the impersonal Brahman. अब कई लोग समझते हैं हमें क्या लेना देना भाई कृष्णा से? कौन कृष्णा? ये तो कोई हिस्ट्री में कोई महान पुरुष रहे होंगे, हैं? एब्सोल्यूट तो क्या है? ब्रह्मन है, इम्पर्सनल ब्रह्मन, निराकार रूप ही मतलब मेन है, सुपीरियर है. कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं. Factually, as it is stated in Bhagavad Gita, the impersonal Brahman is the personal effulgence of Krishna.
अब हम लोगों ने भगवत गीता सेकंड अध्याय में पढ़ा था ना, सेकंड चैप्टर में, इम्पर्सनल भ्रमण क्या है? भगवान की पर्सनल जो तेज है वो भ्रमण है। अब जैसे सूर्य का उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा था, सूर्य प्लैनेट जो है दैट इज भगवान, जो सूर्य देव है, ठीक है, उसके अंदर जो रहते हैं दैट इज देव, जो प्लैनेट है दैट इज उनका घर है जैसे। और जो सूर्य से प्रकाश निकलता है तेज, वो क्या है? वो एक माया पर, वो इम्पर्सनल कंसेप्ट है। उस तेज को अगर हम भगवान माने तो गलत है ना। अब जैसे ट्रेन है, ठीक है, अब किसी गांव में किसी ने ट्रेन नहीं देखा, तो ट्रेन जब दूर से आती हुई दिखती है रात के समय तो सिर्फ लाइट ही दिखती है, तो लोग क्या समझ पड़ते हैं? ट्रेन क्या है जी? बड़ी सी लाइट है। तो ये इम्पर्सनल कॉन्सेप्ट है कि वो भगवान को एक बड़ा सा तेज या इम्पर्सनल भ्रमण मान लेते हैं, जो उससे तेज निकलता है, उनकी बॉडी से जो तेज निकलता है वो उसी को मेन मान लेते हैं, मगर वो तो नहीं है ना। उस ट्रेन, उस इंजन, लाइट के बाहर इंजन भी है, इंजन के बाद डब्बे भी लगे हैं, सो दैट इज अ ट्रेन। तो सिमिलरली गॉड इज नॉट जस्ट द इफल्जेंस, ही इज फार बियॉन्ड दैट, उनका एक प्लैनेट है, ही इज पर्सनल, ठीक है। तो इम्पर्सनल कॉन्सेप्ट क्या है? गलत है, ठीक है। So in the Brahma Samhita, it is clearly stated that Krishna is supreme personality of Godhead, the cause of all causes. ये हम लोगों ने भागवतम में भी पढ़ा कि भगवान ही सर्व कारणों के कारण है और वो पुरुष है, सुप्रीम पुरुष है। Even the millions of incarnation are only his different expansion. क्या लिखा है ब्रह्म संहिता में? लिखा ना, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनंत रूपम, कि उनके बहुत सारे रूप हैं, मिलियंस ऑफ इनकारनेशन है भगवान, और सभी उनकी एक्सपेंशन है। सिमिलरली द लिविंग एंटिटीज आर आल्सो एक्सपेंशंस ऑफ कृष्ण, हम भी भगवान के इनकारनेशन है, छोटी सी मगर छोटी सी इनकारनेशन है। वी आर आल्सो एक्सपेंशंस ऑफ कृष्ण बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। The Mayavadi philosophers wrongly think that Krishna loses his own separate existence in his many expansions. This thought is material in nature. We have experience in the material world that a thing, when fragmentally distributed, loses its own original identity. और मायावादी का कॉन्सेप्ट ना ऐसा ही होता है, मैं आपको बताती हूँ। Just hold on, I'll show you. Okay, ये पेपर दिख रहा है आपको छोटा सा? Would you able to see the paper in my video? हाँ, ये दिख रहा है पेपर? हरे कृष्णा, how many of you would able to see this paper? मेरे हाथ में एक छोटा सा पेपर ये दिख रहा है? ओके, दिख रहा है ना। अब मायावादी क्या बोलते हैं, लाइक जैसे भगवान है ना, कहते हैं कि हम बोलते हैं उनके पार्ट एंड पार्सल है, तो उनका मतलब पार्ट एंड पार्सल मतलब अगर इस पेपर को डिवाइड कर दिया जाए, अब मैं इसको फाड़ रही हूँ ना टुकड़ों में, ठीक है, अब इस पेपर की इंडिविजुअलिटी लूज होगी। अब ये तो एक मेन पेपर नहीं ना रहा, अब ये एक छोटे छोटे ये पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। अब ये पेपर किसमें? पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये देखो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है ना ये देखो। तो उनका मतलब ये है कि भगवान कि अगर हम पार्ट एंड पार्सल, भगवान की खुद की एग्जिस्टेंस नहीं रहती, वो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। मतलब भगवान का इंडिविजुअलिटी नहीं है। दिस इज मायावाद कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हमारा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे अगर ये भगवान है ना, दिस ओरिजिन, तो इसमें से जितने भी पार्ट एंड पार्सल निकलेंगे ना, वो हर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होगी, और भगवान अपनी इंडिविजुअलिटी लूज नहीं करते हैं। ही रिमेन्स द सुप्रीम पर्सन एंड वी एज हिज पार्ट एंड पार्सल हियर, हम उनके पार्ट एंड पार्सल होते हैं अलग अलग, मगर इसी में से निकल रहे हैं, मतलब 1 - 1 रिमेन्स 1। दिस इज स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, ठीक है। मगर मायावादी का कंसेप्ट क्या है? 1 - 1 0, शून्य। मतलब उनका ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि वो डिवाइड हो जाता है, इस तरह से इंडिविजुअलिटी लूज हो जाती है, मगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं है। सो 1 - 1 रिमेन्स 1 और 1 + 1 ऑल्सो रिमेन 1, ठीक है। सो दिस इज स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और इसी से एक और चीज, दिस इज 1 - 1 इक्वल्स टू 1 ओनली, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। और मायावादी इसका अलग आ जाता है, ठीक है, डिवाइड करके। ईशो उपनिषद की इन्वोकेशन प्रेयर में क्या बोलते हैं भगवान? ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या बोला है कि जो सुप्रीम पर्सन है वो पूर्ण है, ठीक है, मतलब ही इज कंप्लीट होल, और उनमें से जो निकलता है वो भी एक कंप्लीट पर्सन है, वो भी आधा अधूरा नहीं निकलता, वो भी कंप्लीट है, ठीक है। और भगवान से जो भी चीज निकल रही है वो कंप्लीट है, उनके अंदर कुछ जाएगा तो वो खुद में भगवान कंप्लीट ही रहेंगे, कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। तो दिस इज मेंशन इन ईशोपनिषद। सो ये मायावादी इसका फिलोसफी गलत है यहाँ पे, ठीक है, कि फ्रेगमेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्या बोले? थॉट, दे थॉट इज मटेरियल, वी हैव, okay, I'll tell you.
the Mayavadi philosopher wrongly think that Krishna loses his own separate existence in his many expansion. जैसे मैंने ये पेपर आपको फाड़ के दिखाया ना कि वो मतलब कि कृष्ण की इंडिविजुअल थी, वो कृष्ण अपने एक्सपेंशन लूज कर जाते हैं जब वो एक्सपेंड करते हैं, मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर जाते हैं जब ऐसे सेपरेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, मगर ये गलत है, कृष्णा रिमेन सेम, ठीक है. सो when fragmentally distributed loses its own origin, but the Mayavadi philosophers fail to understand that absolute means that 1 plus 1 is equal to 1, कि 1 plus 1 1 ही रहेगा, 1 minus 1 also will remain 1. This is understanding that 1 minus 1 is also, प्रॉपर ने यही बताया. So this is the case in the absolute world. Absolute world में क्या होता है, जो जैसा है वैसा ही absolute रहता है, कुछ कट शॉर्ट नहीं होता, ठीक है. ये पॉइंट समझ में आया सभी को, यहाँ पे मायावादी क्या बोलना चाहते थे और प्रपात ने क्या समझाया. आस्था, कोमल माता, डिड यू अंडरस्टूड? पॉइंट समझ में आया आपको कि हम लोग इंडिविजुअलिटी हम लोग भगवान के एक्सपेंशन हैं, मगर क्या भगवान अपनी इंडिविजुअलिटी लूज नहीं करते हैं, वो पूर्ण रहते हैं, ठीक है. मगर मायावादी क्या बोलते हैं कि डिवाइड हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है. कोमल माता जी समझ में आया आपको? यू अंडरस्टूड कि नहीं आया? ये दोबारा समझाओ. आया समझ में? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझ में आना चाहिए. आया समझ में आपको? Hopefully. Okay. So for want of sufficient knowledge in the absolute science, we are now covered with illusion, and therefore we think that we are separate from Krishna. Want of sufficient knowledge in the absolute science, we are now covered with illusion, therefore we think that we are separate from Krishna. अब हम लोग माया के illusion में है ना, तो हम समझ लेते हैं भगवान से भिन्न है, हम भिन्न नहीं है ना. जैसे ओशन और ओशन की बूंद अलग अलग है नहीं, क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है, क्वालिटी तो सेम है ना. तो सिमिलरली वी आर शेयरिंग द सेम क्वालिटी एज कृष्ण, बट क्वांटिटी का अंतर है. ही इज आल्सो सच्चिदानंद, वी आर आल्सो सच्चिदानंद, बट द थिंग इज दैट क्वालिटी वाइज वी आर लेस, क्वालिटी हमारा थोड़ा कम है, मतलब क्वालिटी नहीं क्वांटिटी में कम है हम लोग, ठीक है. सो दैट्स हाउ इट्स मेंशन. सो इट सेज ऑल्दो वी आर सेपरेटेड पार्ट ऑफ कृष्णा, वी आर नेवरदलेस नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम. बेशक हम भगवान के भिन्न अंश हैं, मगर उनसे अलग नहीं है हम लोग, ठीक है. अब जैसे सोने की खादान से हम लोग सोना निकालते हैं और ज्वेलरी की शॉप में वही सोना हमें जैसे रिंग्स के रूप में मिलेगा या इयररिंग्स के रूप में मिलेगा, मगर सोना तो वो सोना बराबर सेम ही है ना, अंतर तो नहीं है. हर एक चीज अलग अलग है, सेपरेट है. वो सोने की खादान से ये रिंग अलग है, इयररिंग्स अलग है, नोज पिन अलग है, अलग अलग सेपरेट एंटिटीज हैं, मगर है तो सेम ना, है तो सोना ही. सो दैट इज व्हाट इज हियर, ठीक है. So it says the bodily difference of the living entity is Maya or not actual fact. We are all meant to satisfy Krishna. By Maya alone, Arjuna thought that the temporary bodily relationship with his kinsman was more important than his eternal spiritual relationship with Krishna. अब देखो माया के मतिभूष होकर अर्जुन क्या सोचते हैं कि जो टेम्पररी रिलेशनशिप्स हैं मेरे किन्समैन रिश्तेदारों के साथ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन माय इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा. और ये अर्जुन की कहानी नहीं है, हमारी भी यही हाल है. हम लोग समझते हैं भगवान तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, ये अभी के जो रिश्ते हैं इनको निभाना ज्यादा जरूरी है. यस और नो? हम लोग यही समझते हैं ना. डू वी कंसिडर दिस और नॉट? वी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू आवर बॉडीली रिलेशन रेदर देन गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू आवर प्राइम रिलेशन विद कृष्णा. इज इट यस और नो? हाँ जी, यस माता जी, है ना. हम लोग अपने माँ बाप, ये भाई बहन या बॉडी रिलेशन है, फ्रेंड्स हैं, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. कभी देखो अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आवर प्राइम रिलेशन इज विद कृष्णा फर्स्ट. उनके साथ रिश्ता है. भाई आपके सबसे करीब कौन है? हु इज द पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू यू? कौन है सबसे क्लोज आपके? कौन बताएगा? आस्था माता जी आपके, कोमल माता जी बताओ आपके क्लोज कौन है? माता जी कृष्णा ही क्लोज है ऐसे तो, बट अभी तो यही परिवार सारा. ये तो इल्यूजन है माता जी. मम्मा तो है नहीं आपके यहाँ पे, वो तो दूर चले गए हैं जॉब पे, वो तो अभी क्लोज नहीं है अभी, है? बट नहीं है, बट वो मम्मा नहीं है, भाई बहन सारे. इल्यूजन इल्यूजन. हाँ जी आस्था माता जी आपके सबसे क्लोज कौन है? यस, हु इज क्लोज टू यू आस्था? Krishna is very close to our heart. In 13th chapter, Krishna says, Suhridam Sarvabhutana. I am the ever well-wisher and I am seated in your heart. Sarvasya Cham Hidi Sani Vishto. In your heart, I am there, seated in your heart. So Krishna
हम कहीं पे भी जाए ना, हमारे सबसे क्लोज कौन है? कृष्णा है ना? हंसते ही सेइंग कृष्णा बट फाइनल इज माया. दैट इज हाउ एक्चुअली कृष्णा इज वेरी क्लोज. अभी भी सब देखा जाए तो हमारे क्लोज कौन है? कृष्णा है हमारे हृदय में. ही इज आवर एवर वेल विशर. हम कहीं पे भी जाएंगे ना, आप अपनी किसी कमरे में छुप के भी बैठोगे ना, तो कृष्णा आपके सबसे क्लोज होंगे. ही इज वेरी क्लोज टू अस. सो फाइनल नहीं, फिलहाल. अच्छा, फिलहाल तो माया है. सॉरी. सो ऑब्वियसली फिलहाल के लिए हम लोग माया में ही अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स, रिलेशन, इनको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कृष्णा से. दिस इज बिकॉज ऑफ द इल्यूजन. लाइक अर्जुन इज थिंकिंग कि कृष्णा तो बाद में भी देख सकते हैं, भले रिश्तेदारों को तो बचा लो, इनको कैसे मार दूं मैं. सो दिस इज व्हाट द स्टोरी ऑफ आर ऑल्सो. ये अर्जुन की स्टोरी नहीं, हमारा भी यही हाल है. हमारा ही यही हाल है एक्चुअली. सो वी डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू कृष्णा, एंड वो रिश्ता ही तो है. इट्स बिकॉज ऑफ कृष्णा वी आर एग्जिस्टिंग. कृष्णा नहीं होगा तो हमारी तो एग्जिस्टेंस क्या है? कुछ भी नहीं. हमारी एग्जिस्टेंस की वैल्यू नहीं है. वी आर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू लव कृष्णा. पर्पस भी यही है, और हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो भी कृष्णा की कृपा है. नहीं तो व्हाट इज, हम लोग कहाँ से एग्जिस्ट कर रहे हैं? हु इज द ओरिजिन? कृष्णा इज द ओरिजिन. बाकी चीजें तो दीज आर बॉडीली कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू कर्मा वी आर इन सम रिलेशन विद द पीपल, but the prime relation is with Krishna. ठीक है. So he says, by Maya alone, Arjuna thought that temporary body relationship with his kinsman was more important than his eternal spiritual relationship with Krishna. इन bodily relation तो थोड़े समय के लिए हैं, मगर कृष्णा के साथ रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का इटर्नल है. वो तो कभी टूटने नहीं वाला. Chaitanya Mahaprabhu was telling in his lecture, he says, we can never do anything that make Krishna to leave us. हम लोग कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते कि कृष्णा हमें छोड़ दे. कृष्णा के पास कोई रीजन नहीं है हमें छोड़ने का. एंड ही विल नेवर लीव अस. He will never leave us. No matter what you do, he will never leave you. Like Jagai Madai, you women hunter, you become alcoholist, you become whatever the sinful person you become, Krishna is not going to leave you. In Ravana's heart also Krishna was there. In Hiranyakashipu's heart was also Krishna was there. So they were the big demons. But Krishna never left them. Because ultimately they are jivas. How Krishna can leave? उन्हीं के बच्चे हैं ना, उन्हीं के अंश हैं. कृष्णा ने नहीं छोड़ा. He is unconditionally waiting for us. So this is the eternal relation. How we can neglect Krishna? सोच के बुरा लगता है ना. कोई हमारे लिए इतना कुछ करता है और हम आगे उसको कुछ देखे ही नहीं, कितना बुरा लगेगा. हमें बुरा लगता है ना. So think about Krishna then. He is waiting patiently for us. So we say the whole teaching of Krishna Gita is targeted toward this end, that a living being as Krishna's eternal servitor cannot be separated from Krishna, and a sense of being an identity apart from Krishna is called Maya. और जब हम समझते हैं कि हम कृष्णा से अलग हैं, भिन्न हैं, तो वो माया है. The living entity as separate part and parcel of Supreme have a purpose to fulfill. ठीक है, हम लोग अगर भगवान के अंश हैं, उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, तो कुछ पर्पस है उसका. Having forgotten that purpose, since time immemorial, they are situated in different bodies as man, animal, demigod, etc. हम अगर भगवान के अंश हैं तो उसको कुछ पर्पस है ना, कुछ तो पर्पस होगा अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस? वो भूल के हम लोग एक बॉडी से दूसरी बॉडी में घूमी जा रहे हैं. कभी मनुष्य में, कभी जानवर में, कभी देवता में, काबू विप्र काबू शूद्र. तो इस तरह से we are just roaming from one body to another. Such bodily differences arise from forgetfulness of transcendental service to the Lord. और ऐसा क्यों होता है? हम बार बार अलग अलग जन्म क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम भगवान से अपने रिश्ते को भूल चुके हैं. And we forgot we are meant to render the transcendental service to Lord. But when one is engaged in transcendental service through Krishna consciousness, one become at once liberated from this illusion. But जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, कृष्ण भावनामृत में आके, then we are able to revive this relation. उसको याद कर पाते, नहीं मेरा तो कुछ रिश्ता है भगवान के साथ. अब किसी को साथ कोई रिश्ता नहीं है तो उसको आप सेवा कर पाते हो क्या? Would you able to render service? Would you able to feel some reciprocation when you have no relation with someone? Yes. I'll tell you, Sachinandan Maharaj was telling in lecture, I think Asta Matri you shared with me. So I think she was sharing only. Sachinandan Maharaj was telling, बता रहे थे महाराज, कहते कि कृष्णा is not leaving us. कृष्णा के मन जैसे बोला है कि चैतन्य चरमों पर कहते कि there is no reason that Krishna is going to leave us. Why? कृष्णा क्यों नहीं छोड़ते हमें? क्योंकि हमारा एक समय उनके साथ एक बहुत गहरा प्रेम है जो हम भूल चुके हैं, मगर कृष्णा नहीं भूले हैं. वो प्रेम संबंध भगवान नहीं भूले हैं. सो दैट इज व्हाई ही इज नॉट रेडी टू लीव अस. किसी के साथ हमें बीमारी होगी ना, हम भूल चुके हैं. जैसे
एक छोटा सा स्टोरी मैंने देखा था फेसबुक पे, कुछ किसी ने डाला था। तो एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को लेके जा रहा होता है और वो पत्नी उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती, वो इधर उधर देखी जा रही है, इधर उधर लोगों को देखी जा रही है, वो उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ नहीं देख रही है, और वो बूढ़ा व्यक्ति उसको हाथ पकड़ के लेते जा रहा है, क्रॉस करवा रहा है, कुछ करा रहा है, ठीक है। मगर वो बूढ़ी औरत, उसकी जो पत्नी है, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही, एक ग्रेटिट्यूड नहीं शो कर रही कि ये व्यक्ति मेरा कितना ध्यान रख रहा है, वो इधर उधर झांकी जा रही है, देखी जा रही है। तो एक रिपोर्टर था वहां पे, ही वाज लाइक, वो कुछ फोटो शूट कर रहा था, तो उसने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि ये लेडी कौन है। उसने बोला ये मेरी पत्नी है। तो बोला कि मगर पत्नी तो, पर लगता नहीं है कि शी इज इंटरेस्टेड इन यू, बिकॉज शी इज नॉट एट ऑल पेइंग अटेंशन टू यू। वो कभी इधर देख रही है, उधर देख रही है, बट देन व्हाई यू आर टेकिंग अ बर्डन टू कैरी हर? आप क्यों इतना कष्ट लेके तो उसको ले लेके जा रहे हो? कहते एक्चुअली शी इज गोइंग थ्रू अ डिजीज, अल्जाइमर करके, जिसमें इंसान भूल जाता है अपनी आइडेंटिटी को या अपने रिश्तों को, वो भूल चुका होता है। कहते शी हैज फॉरगॉटन बट आई हैव नॉट फॉरगॉटन दैट शी इज माय वाइफ एंड वी हैव स्पेंट मेनी इयर्स टुगेदर इन अ लविंग रिलेशन। हाउ कैन आई लीव हर इन सच एन सिचुएशन? शी इज गोइंग थ्रू अ डिजीज। इसको बीमारी में कैसे छोड़ दूं? ये तो भूल चुकी है, इसको भूलने का बीमारी लग गया है, बट मुझे तो याद है ना, मैं कैसे छोड़ दूं? आई हैव स्पेंट so much time in a loving relation, in a very good relation I have spent with her. How can I leave her ऐसी सिचुएशन में? So this is what here also with Krishna and us. We have forgotten that relation with Krishna, but Krishna has not forgotten. So that's why he is with us, traveling all the way, in every species traveling with us, because he has not forgotten. But we have forgotten that same relation we carry with Krishna. So that's why Krishna is more eager to have us. But हमारी eagerness कम है क्योंकि हम भूल चुके हैं ना अपना रिश्ता, वो भगवान के साथ जो लीला है, पास्ट टाइम रहा होगा, हम भूल चुके हैं. We have forgotten our relation with Krishna. So that forgetfulness is Maya actually. So this is because of Maya. और ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, आपने अनुभव किया होगा, जब कृष्ण भावना में भगवान की सेवा करते हैं या भोग लगाते हैं या कभी कीर्तन लीड करते हैं या नाचते हैं या पुस्तक वितरण करते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, तो we feel certain kind of satisfaction from within. We feel such love. We feel some reciprocation. Why so? Because we have some relation with Krishna. It's not कि हम out of बिना किसी रिश्ते के ऐसे चला जा रहा है. No, there is relation, and this Krishna consciousness help us to understand. नहीं, I have some relation with Krishna. I belong to Krishna. So ये चीजें हमें revive कराती हैं, हमें याद दिलाती हैं. So that we need to understand. ठीक है? So that's why we have to study Bhagavad Gita, Bhagavatam, be in association with devotees so that we can revive this relation with Krishna. ठीक है? ये जो फॉरगेटफुलनेस है ना, इस बीमारी को हम भी बीमारी से भुगत रहे हैं. हमारी क्या बीमारी है? फॉरगेटफुलनेस. हम भूल चुके, हमें तो अपनी आइडेंटिटी नहीं याद, हम अपने आप को ही भूल चुके हमारी आइडेंटिटी क्या है. सो वी आर आल्सो गोइंग थ्रू दैट अल्जाइमर, that we have forgotten about our identity, we have forgotten about our relation, we have forgotten about our purpose. So we have to, तो हमारा इलाज चल रहा है. हमारा इलाज का क्या है? हमारा इलाज कैसे हो सकता है? कृष्णा कॉन्शियसनेस से. ठीक है. So it said further, Krishna, but when one is engaged in transcendental service through Krishna consciousness, one become at once liberated from this illusion. One can acquire such pure knowledge only from the bona fide spiritual master. तो हमारे डॉक्टर कौन है? Who is our doctor? Who is going to treat us? Spiritual master. He is our Prabhupada. तो हमारे फिजिशियन हैं, ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस में. सो आगे फार्मा बिजनेस है. प्रभुपाद तो दवाइयाँ किताबें हमें दे के चले गए हैं, प्रिस्क्राइब करके चले गए हैं मेडिसिन. अब हम लोग देखते हैं हम कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं. नाउ आवर स्पिरिचुअल मास्टर इज देयर टू टेक केयर. ही इज द ट्रू डॉक्टर हु इज चेकिंग अस, टेलिंग अस कि ऐसा ये प्रिस्क्राइब, ये मेडिसिन दिया है हरि नाम का. ठीक है. प्रसाद बोला, डाइट दे के गए हमको, एक्सरसाइजेस दिए हैं हमें, चैंटिंग मेडिटेशन करने का, है ना, बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज दिया है, बॉडी माइंड को फिट रखने का. सो ही हैज प्रिस्क्राइब्ड अ मेथड फॉर अस, बट हाउ मच वी आर टेकिंग दैट डिपेंड्स. है ना. आप डॉक्टर को आप प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करोगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी. So we are also going through a severe disease. So we need to understand, we need to follow the doctor's prescription, our Guru Maharaj instructions, okay? And thereby avoid the delusion that the living entity is equal to Krishna. Perfect knowledge is that the Supreme Soul, Krishna, is the supreme shelter for all living entities. And giving up such shelters, the living entities are deluded by material energy, imagining themselves to have a separate identity. ठीक है. जब हम ये ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, कहते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य. सो हमें अंधकार से ज्ञान में कौन लेके आता है? हमारे गुरु महाराज. टॉर्च लाइट, ज्ञान की टॉर्च लाइट से वो जगाते हैं, वो अंधकार जाता है. देन वी एबल टू अंडरस्टैंड एंड देन वी आर एबल टू कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन कि हम एक सेपरेट आइडेंटिटी, हमारा कोई रिश्ता नहीं है भगवान से. हम वो चीज को समझ पाते हैं कि नो, वी आर इन रिलेशन विद कृष्ण. ठीक है.
So it further says, the living entity are deluded by material energy, imagining themselves to have a separate identity. Thus, under different standards of material identity, they become forgetful of Krishna. When, however, such deluded living entity becomes situated in Krishna consciousness, it is to be understood that they are on the path of liberation, as confirmed in Bhagavatam 2.10.6, Muktir hitva nitha rupam sarupena vivastitahi. Liberation means to be situated in one's constitutional position as an eternal servant of Krishna consciousness. So liberation का मतलब ये नहीं है मुक्ति, मोक्ष. No. Liberation means to understand, to situate oneself in one's constitutional position, being a servant of Krishna. लिबरेशन का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद ने देखो कितना सही सटीक एक डेफिनेशन दिया है. व्हाट इज द डेफिनेशन? लिबरेशन मीन्स टू बी सिचुएटेड इन वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज एन इटर्नल सर्वाइटर ऑफ कृष्णा. सो दिस इज द लिबरेशन, नॉट मोक्ष, मुक्ति. Yeah, obviously liberation follow us, but first we have to become the servant, understanding our real position. That is actual liberation. Okay. Yes, any of you would like to add or comment or some question for the time being? किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है या कुछ आप शेयर करना चाहें? So go ahead, or if nothing, we will be moving to the next shloka. Yes, any of you having anything to speak? किसी को कुछ कहना है या शेयर करना है? Yes. हाँ माता जी, आपने वो क्या फिर से आप बताना, वो क्या मतलब प्रभुपाद ने बताया था कि 1 - 1 1 होता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. वो कैसे मतलब? देखो, जैसे भगवान ईशो उपनिषद में बताया है कि भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है. ठीक है. उनमें से अब हम उनके एक्सपेंशन हैं. मायावादी क्या कहते हैं, जैसे ये पेपर का उदाहरण देती हूँ मैं आपको. ठीक है, ये देखना है इसको. मायावादी कहते हैं जैसे ये भगवान है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जैसे ये मतलब भगवान है, एक मतलब है. ठीक है, तो उनकी एक्सपेंशन मतलब ऐसे डिवाइड हो जाना. एक सेकेंड. हेलो, कौन बोल रहे? हेलो, हरे कृष्णा, कौन बोल रहा है? एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, सॉरी. सो जैसे हम बता रहे थे, मायावादी कहते हैं जैसे भगवान है ना, जैसे ये पेपर की तरफ देखना कोमल. ठीक है, अब जैसे ये पेपर है, ठीक है, वो बोलते हैं जैसे एब्सोल्यूट ट्रूथ है, भगवान है. तो मतलब एक्सपेंशन मतलब उन्हीं की बोल रहे भगवान की बहुत सारी एक्सपेंशन है. एक्सपेंशन मतलब ऐसे डिवाइड हो जाना कि मतलब भगवान की जो खुद की एग्जिस्टेंस है ना, वो इंडिविजुअल नहीं रहते हैं, मतलब ही डिवाइड्स, ऐसे डिवाइड हो जाते हैं. ये मायावाद है. ठीक है, मगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या है, जैसे कृष्णा ये मतलब ये एब्सोल्यूट है ना, तो इसमें से जो एक्सपेंशन निकलेंगी भी ना, मगर ये कंप्लीट कृष्णा कंप्लीट रहते हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है. ठीक है, वो डिवाइड नहीं होते हैं. उनमें से जितने भी 1 - 1 मतलब इसमें से अगर आप कुछ निकालोगे भी ना, तो ये इतना ही रहेगा. जैसे समुद्र है, समुद्र से पानी निकालोगे तो समुद्र से में कुछ कमी आती है? नहीं आती ना, उतना का उतना ही रहता है. तो उसी प्रकार भगवान की जितनी भी एक्सपेंशन है, हम पार्ट्स बनते हैं, मगर भगवान सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, कंप्लीट रहते हैं. उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं होती है, ही रिमेन इंडिविजुअल. और उनमें से जितनी भी एक्सपेंशन निकलती है, उनकी भी सबकी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है. सब एक कंप्लीट होल उनसे निकलता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द 1 - 1 वाला कॉन्सेप्ट था, कि इसमें से अगर कुछ माइनस भी करोगे तो कृष्णा पूर्ण रहते हैं, डिवाइड नहीं हो जाते, कुछ कटे बटे नहीं रहते. ठीक है, कुछ ऐड भी करोगे तो देयर इज नथिंग लाइक दैट. जैसे समुद्र में कुछ मिलाना या निकालना, समुद्र से बराबर रहता है ना, उसी प्रकार से. समझ में आया कोमल? यस माता जी. ओके, सो दिस वाज द, यही था उसका मतलब. ठीक है, और कुछ कहना है किसी को? यस, एनीथिंग एल्स? ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोका. अपि चेत् असि पप्यभ्याय सर्वेभ्याय पपकृत्तमः सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि. अपि चेत् असि पपेभ्याय सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि. अपि चेत् असि पपेभ्याय सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि.
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इवन इफ यू आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिंफुल ऑफ ऑल सिनर्स, व्हेन यू आर सिचुएटेड इन द बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, यू विल बी एबल टू क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ मिजरीज। देखो प्रभुपाद कितनी उम्मीदें जगा रहे हैं हमारे लिए। कहते हैं आप कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, हम लोग समझते हैं ना कई बार, मैं इतना डिग्रेडेड हूँ, इतना सिंफुल हूँ, मेरा क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ये भक्ति करेंगे कोई फायदा नहीं, मेरा कुछ नहीं होने वाला। और देखो प्रभुपाद कितनी उम्मीदें जगा रहे हैं हमारे अंदर, होप अगेंस्ट होप। प्रभुपाद सेज इवन इफ यू आर कंसिडर्ड द मोस्ट सिंफुल ऑफ ऑल सिनर्स, और आप कितने ही अपने आप को बड़े बड़े पापियों से बड़ा पापी मानो, मगर इफ यू आर सिचुएटेड इन द बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये जो ट्रांसेंडेंटल ज्ञान है, ये बोट अगर आपने पकड़ ली ना, तो ये जो भौतिक जगत का ओशन है, इसको आप क्रॉस कर पाओगे। अब जो ओशन है उसको क्या हम ऐसे तैर के क्रॉस कर सकते हैं? बहुत वास्ट है ना ओशन। सो लाइक डिवोशनल सर्विस इज वेरी वास्ट, और डिवोशनल सर्विस वास्ट है, और ये भौतिक जगत है, ये भी एक बड़े समुद्र के समान है, इसको पार कर पाना इतना आसान नहीं है। बट इफ we take shelter of this transcendental knowledge that Krishna is giving in this Bhagavad Gita, we are able to cross over this ocean of miseries. So this is the hope. हमें करना क्या है? इस नाव को पकड़ना है, बस इसमें बैठ जाना है, and then what will happen? We are able to cross over the ocean of miseries. ठीक है, पद क्या बता रहे हैं? Proper understanding of one's constitutional position in relationship to Krishna is so nice that it can at once lift one from the struggle for existence which goes on in the ocean of nescience. This material world is sometimes regarded as an ocean of nescience and sometimes as blazing forest. क्या बोला है? Proper understanding of one's constitutional position in relationship to Krishna is so nice that it can at once lift one from the struggle for existence which goes on in an ocean of nescience. कि just इतनी सी अंडरस्टैंडिंग कि हम भगवान के साथ रिश्ते में हैं, हमारा जो स्ट्रगल है ना एग्जिस्टेंस के, ये सारे खत्म हो जाएंगे। हाउ? अब जैसे उदाहरण मैं आपको देती हूँ, ठीक है? आप जैसे हमारी कंट्री में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन माना जाता है? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, है ना? उन्हीं के अंडर डायरेक्शन में पूरा कंट्री चल रहा है हमारा। अगर आपको बाय चांस कभी पता चले कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, वो आपके रिश्तेदार हैं, एक वो भी क्लोज रिलेशन में, ठीक है? इफ यू गॉट टू नो दैट ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज लाइक इन अ क्लोज रिलेशन टू यू, कि आपका उनके साथ एक बहुत गहरा क्लोज रिलेशन है, दूर पार का भी नहीं, मतलब क्लोज वाला रिलेशन है, ठीक है? और वो कभी अगर आपको पता चले, सो आप टेंशन फ्री नहीं हो जाते थोड़ा कि यार मेरा रिश्तेदार इतनी बड़ी पोजीशन पे, मेरे को चिंता किस बात की है? मेरे को तो आराम से जॉब लग जाएगा, आराम से खाने को मिल जाएगा, मेरे को कोई कुछ क्या कह सकता है? माय रिलेटिव इज एट सच अ बिग पोजीशन। आपकी जो स्ट्रगल होगी, जब रोजमर्रा की स्ट्रगल कर रहे हो जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, ये वो खत्म हो जाएगी ना? होगी कि नहीं होगी? यस, होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस माता जी। हो और जाएगा मेरी ना जब पता जरूरतें भी चलेगा कि मेरा बढ़ेंगी। रिश्तेदार इतनी बड़ी पोजीशन पे है। क्या बात है, मेरे को क्या टेंशन, मैं क्या इधर धक्के खा रहा हूँ? आई कैन डायरेक्टली टेक एक्सेस। सो सिमिलरली द डे वी रियलाइज दैट वी आर इन रिलेशन विद कृष्णा, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड विल गो अवे। एक मोमेंट में निकल जाएगा, बट इतना रियलाइज करना जरूरी है ना, हम समझ नहीं पाते। कोई कहते हैं कि प्रपात को किसी ने बोला था कि आई फॉरगॉट, मुझे याद नहीं आ रहा, वही अगर कोई तुम्हें बोला क्या गरीब इंसान हो तुम लोग, भक्तों के पास कहाँ पैसा है? बोलना भाई पैसे बहुत है, हमारा जो बाप है ना, he is having lot, everything belongs to him, and who is our father? Krishna, everything belongs to him, he is a supreme proprietor, और हम उन्हीं की संतान है भाई, बस इतना याद करना है। everything like the property of Krishna, and like we are in relation with Krishna, so we need to just understand this thing, the whole struggle will go away। ठीक है? This material world is sometimes regarded as an ocean of nescience and sometimes as a blazing forest। अब रोज सुबह हम लोग एक प्रेयर गाते हैं, कौन सी प्रेयर गाते हैं? कौन बताएगा? What prayer we sing in the early morning? Yes, कौन बताएगा? पहला पैराग्राफ कौन बताएगा मुझे? कौन सी प्रेयर गाते हैं हम लोग? Yes, who will tell me? माता जी संसार दावा। Yes, क्या गाते हैं? संसार दावा नललीढा लोका त्राणय कारुण्या घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम। संसार दावनल,
लीड अ लोका दावानल, ये जो संसार है मटेरियल वर्ल्ड, इट इज लाइक अ ब्लेजिंग फॉरेस्ट जिसमें आग लगी है. यहाँ पे क्या बोला है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक ब्लेजिंग फॉरेस्ट. अब बाहर बारिश हो रही है ना, अभी आज तो खैर इट्स अ कोल्ड वेदर इन स्टेट, बट अगर गर्मियों में ऐसी बारिश हो जाए मजे आ जाएंगे ना. इतनी गर्मी थी, थोड़ी राहत मिलती है, बारिश हो जाती है ना. सो भक्तों की करुणा से, भगवान की करुणा से वो बारिश आती है, जिससे ये संसार की जो दावानल है ना, फॉरेस्ट फायर, ये मिटती है, ये बुझ जाती है. उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है, ये ब्लेजिंग फॉरेस्ट है. कि भगवान की कृपा से जब हम रिश्ते में आते हैं ना, तो ये ब्लेजिंग फायर, फॉरेस्ट फायर भी उनकी कृपा से, बारिश से बुझ जाती है. ठीक है. So this is the kripa and karuna of Guru and Vaishnavas. Lord Krishna. He says, in the ocean, however expert a swimmer one may be, the struggle for existence is very severe. If someone comes forward and lifts the struggling swimmer from the ocean, he is the great savior. वही बता रहे, आप समुद्र में गिर जाओ, कितनी दूर तक तैर सकते हो? अगर आप मिडल ऑफ द ओशन, यू आर जस्ट फॉल फ्रॉम समवेयर, तो आप वहां पे मिडल ऑफ ओशन में आप तैर रहे हो, कितना खतरा है भाई. अंदर से शार्क आ सकती है, कोई भी जानवर आपको खा सकता है समुद्र का. ठीक है. और आपको इतना स्टेमिना भी चाहिए भाई, इतना समुद्र कैसे पार करके जाओगे? और बीच में अचानक से कोई आपको अगर लिफ्ट कर दे, ऊपर से हेलीकॉप्टर वाला आ गया, आपको पिक कर लिया, ले गया, ही इज योर सेवियर एंड लाइक ग्रेटेस्ट सेवियर. आप बोलोगे जान बची लाखों भाई, इतनी मुसीबत में बचाया. ठीक है. नहीं तो इस बड़े समुद्र में कौन आपको बचाना है? दूर दूर तक जमीन नहीं दिखती है. Who is going to help you? But somehow some helicopter came and just picks you up. Such a great mercy, isn't it? So this is what our spiritual master and Krishna is doing. This is what Prabhupada has done with us. Ki we are also in a blazing forest. We are just struggling. And Krishna just sent Prabhupada and the books. Prabhupada gave us these books to read and to get. He is also lifting us through this knowledge. He is also lifting us from this great nuisance. तो अगर हम इस बोट का सहारा ले लें, इस शास्त्र का, तो we can cross over ना आसानी से. If someone come forward and lift struggling swimmer, he should be greatest savior. Perfect knowledge received from Supreme Personality of Godhead is the path of liberation. The boat of Krishna consciousness is very simple, but at the same time the most sublime. और ये प्रोसेस बहुत सिंपल है और बहुत सबलाइन भी है. ये मीटिंग खत्म होने वाली है. प्लीज कम अगेन, देन वी विल डिस्कस वन मोर श्लोका. प्लीज कम अगेन. Is it there any problem in this process? No hard and fast rule how to chant, where to chant. कोई hard and fast rule नहीं है. Prabhupada says just chant and be happy. So this is the process. No hard and fast rule. जंगल नहीं जाना है, घर बार नहीं छोड़ना है. ठीक है. You don't have to leave your home to practice devotional service. No. While working you can practice. Being in grihastha you can practice. ठीक है. While in any state, any situation, any circumstance of your life, you can chant the holy names. भगवान का नाम तो आप कभी भी ले सकते हो ना, किसी भी सिचुएशन में ले सकते हो. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ओ चैंटिंग करने आपको ऐसे बैठना है, ये करना है, वो करना है. नो हार्ड एंड फास्ट रूल. चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद हैज मेड दिस प्रोसेस वेरी सिंपल फॉर अस. फ्रॉम 64 राउंड्स ही हैज गिवन अस जस्ट 16 राउंड्स. जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी. जस्ट चैंट द होली नेम्स. एवरीथिंग विल बी डन एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा. जस्ट चैंट. This process has become very simple for us. We don't have to do the many yagyas. We don't have to sit and do meditation for several hours. We don't have to leave our home and go to forest. No severe austerities. Very simple process. And this is the sublime process also. You can experience the bliss at your own. As says, taste of the pudding is in eating. कोई पुडिंग है, उसको जब तक खाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा. तो उसी प्रकार से ये भक्ति सबलाइम है, लिखा है यहाँ पे. बट जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखोगे, आपको पता नहीं चलेगा. सो टू एक्सपीरियंस सच ब्लिस, ट्राई चैंटिंग, ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस प्रोसेस एंड सी द रिजल्ट इन योर पार्ट. आप खुद ही रिजल्ट देख सकते हो आपके सामने. ये कोई मिथ है, माइथोलॉजी नहीं है. इट इज अ फैक्ट. सो जस्ट प्रैक्टिस एंड देन सी. Okay, so we'll move to the next shloka. Anybody having any comment on this words or realization or question? इस वर्ड्स पे किसी को कुछ बोलना है? पीछे वाले वर्ड्स पे? Yes. कुछ comment या question या any realization or sharing something? Shall we discuss this words also? आगे का पढ़ लेते हैं. ठीक है. यथा धीमसे समिद्धुग्निर्भस्म सत्कुरुते अर्जुन ज्ञानगिन्ना सर्वकर्माणि भस्म सत्कुरुते ततः. क्या बोला है? As a blazing fire turns firewood to ashes, as they saying this shloka is giving me hope.
Yes, Mataji, there is a hope for everyone. Krishna has given hope in Bhagavad Gita many times. So there is no way that there is nothing like hope in Krishna consciousness. There is great hope in everything. मतलब बहुत उम्मीदें हैं भक्ति में. So there is nothing that there is no hope. There is hope. ठीक है. कृष्णा तो ये भी कहते हैं बस अब सेवा में लगो, मैं तुम्हें खुद इंटेलिजेंस दूंगा, हाउ टू कम टू मी. कृष्णा सेज इन 10.10 ना, व्हाट ही सेज, तेषु सततं युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं दामि बुद्धि योगं तं येन मम उपयन्ति ते. कि those who are constantly engaged in my devotional service, I give them intelligence how to come to me. कोई व्यक्ति बोल सकते हैं मुझ में तो बुद्धि नहीं है, कैसे सेवा करनी होती है, कैसे भक्ति करनी, मुझे तो नहीं पता चलता. नहीं पता, कोई बात नहीं, बस सेवा करो. Krishna will give you intelligence how to come to him. So he is taking responsibility. Now, being a Paramatma in your heart, he will give you intelligence. So don't worry. So there are many hopes Krishna has given in Bhagavad Gita. So we just have to read and follow. Okay. आगे लिखे हैं, as a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. कि जिस प्रकार से अग्नि है लकड़ी को राख बना देती है, उसी प्रकार से फायर ऑफ नॉलेज बर्न ऑल द एशेस, ऑल द रिएक्शंस टू मटेरियल एक्टिविटीज. तो इसी प्रकार से जो ज्ञान की जो अग्नि है, ये जितने भी हमारे रिएक्शंस हैं उनको क्या करेगी, एश, जस्ट बिकम एशेस. You know, all the material activities are burned into the ashes. So we have to take the boat of this transcendental knowledge, and then we are saved. ठीक है. पर्पट में प्रपात ने क्या बोला है, इट्स अ वेरी वंडरफुल पर्पट प्रपात हैज गिवन. Perfect knowledge of self and super self and of their relationship is compared here into fire. कि जो पूर्ण ज्ञान है अपना और भगवान का, that or the relationship is compared to the fire. ठीक है, ये जो ज्ञान है ये फायर के थ्रू कंपेयर किया गया है. This fire not only burns up all reaction to impious activity, but also all reaction to pious activities, turning them to ashes. क्या बोला, ये जो पूर्ण ज्ञान है ये क्या करता है, जितने भी हमारे रिएक्शन है पाप कर्मों के, उसको क्या करता है, समाप्त कर देता है. ठीक है. एंड ऑल द रिएक्शन टू पाइस एक्टिविटी टर्निंग देम टू एशेस मींस ऑल कर्मास जीरो. आइदर इट्स गुड और बैड, एवरीथिंग इज जीरो. So that means no karma means transcendental state. No karma means transcendental state. अगर कर्मा है तो एक्शन रिएक्शन है ना, अच्छा हो बुरा हो, भुगतने के लिए बहुत ही जगत आना पड़ेगा. अब एक्शन रिएक्शन ही नहीं है तो इधर आना ही नहीं है, इधर आना ही नहीं है तो कहाँ जाना है, वो लोग जाना है. So we have to ultimately we have to situate ourselves in transcendence ना. And how we can situate ourselves in transcendence? By getting off these karmic reactions, है ना. कृष्णा ट्रांसेंडेंटल है तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रोसेस है या प्रैक्टिसेस हैं वो भी ट्रांसेंडेंटल है, एंड इट मेक्स अस ट्रांसेंडेंटल. ठीक है. सो यहाँ पे आगे बात आती है, देयर आर मेनी स्टेजेस ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन इन द मेकिंग, रिएक्शन फ्रुक्टिफाइंग, रिएक्शन ऑलरेडी अचीव्ड एंड रिएक्शन अ प्रियोरिटी. अब ये क्या है, जैसे हम लोग कर्मा करते हैं ना, कईयों के फल हमें इमीडिएटली दिख जाते हैं, इमीडिएट रिएक्शन, और कईयों के रिएक्शन अभी फ्रुक्टिफाई नहीं हुए होते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता नहीं अभी इमीडिएटली, वो डॉर्मेंट स्टेट में रहता है. और कईयों के पहले ही मिल कुछ बाद में ऐसा रहता है. सो ऐसे कई स्टेजेस होती हैं एक्शन रिएक्शंस की. ठीक है. बट नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव पोजीशन ऑफ लिविंग एंटिटी बर्न्स एवरीथिंग टू एशेस. वही कृष्ण ने क्या बोला, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. जस्ट सरेंडर टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ योर ऑल सिंस, डोंट वरी. तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं, सारे पाप मुक्त करवा दूंगा मैं. तो वी हैव टू सरेंडर टू कृष्ण. Similarly, just understanding our position means understanding Krishna's position also. हमें अपना पोजीशन पता चलेगा कि आई एम सर्वेंट, तो इसका मतलब कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन. अगर मैं सर्वेंट को, तो सर्वेंट का काम क्या होता है, सेवा करना. सेवा करना होता है ना. We have to serve Krishna. So when we understood this position, we are away from this action reaction, because Krishna की सेवा ही devotional service है, and that is above the modes and karmic reactions. So that's how we are becoming free from all those things. So when one is in complete knowledge, all reaction, both a priori or posteriori, are consumed. तो जितने भी पुराने हैं, प्रारब्ध हैं, आगे के पीछे के सब खत्म हो जाते हैं. In the Veda, Brihat Aranakya Upanishad 4.422 it is stated, Ubhe Uheshwa ite tarati amritaha sadva asaduni. One overcome both the pious and impious reaction of work. तो pious और impious आना तो भौतिक जगत में पड़ेगा ना, भुगतना पड़ेगा. तो जस्ट भगवान की सेवा में लगो, एवरीथिंग इज बिकम शून्य, एंड यू आर टोटली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल
transcendental position. You can situate yourself in transcendental position. Okay. So I will stop here for today. Any of you having any questions, comments? So one can say, or if nothing, then we can stop also. Yes. नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगा संसिद्धा कलेनात्मनि विन्दति. Okay, here is a question. How can we completely realize our position by engaging in devotional service, Mataji? हम जितना ज्यादा सेवा में लगेंगे उतना ही ज्यादा हमें वो अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण. We can understand our constitutional position. Though we study many times, I am not this body, I am soul. But realization अभी तक नहीं है ना. Realization comes when we practically implement this process. Then the realization comes to us. ठीक है. And execution, first of all, it comes to realization, and execution automatically comes. Right now, we are practicing. Na? We are putting into practice what we are putting into practice. We are waking up early, we are chanting, and devotional service is very important, Mataji. To have the, देखो, what is science? Science क्या होती है? Theory की class होती है ना? और उसके बाद में हम लेबोरेटरी में जाके वही चीज उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं. अब जैसे थ्योरी की क्लास में हमने पढ़ा 2 parts of hydrogen, 1 part of oxygen becomes water. फिर हम लैब में जाते हैं, 2 पार्ट हाइड्रोजन के लेते हैं, ऑक्सीजन के लेते हैं, उनको मिलाते हैं, देखते हैं पानी बना. देन वी रियलाइज नहीं सच में ऐसा होता है ना. वी अंडरस्टूड. तो सिमिलरली हियर वी आर स्टडिंग. ठीक है. और कृष्णा ने बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें दी हैं. हाउ टू स्ट्रेंथन डिवोशनल सर्विस, आई विल टेल यू वन बाय वन. सो वी आर स्टडिंग हियर. कृष्णा सेज मेक मी प्रायोरिटी, डोंट फॉरगेट माय प्राइम रिलेशन. आप बॉडीली रिलेशंस को इतना मेरे को भूल के मत बनाओ, बिकॉज आई एम क्लोजर टू यू. वी आर गेटिंग दिस नॉलेज दैट कृष्णा इज क्लोजर. सो दैट मीन्स वी आर मेंट टू डिस्कस एवरीथिंग विद कृष्णा. जब हमारे क्लोज होते हैं उनसे सब कुछ डिस्कस करते हैं ना हम लोग. सो डिस्कस विद कृष्णा. कृष्णा टुडे दिस हैपन, दैट हैपन. सो इन एवरीथिंग यू आर रिमेंबरिंग कृष्णा. सो यू आर एबल टू डेवलप मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो आपका फेथ बढ़ेगा. एंड देन यू आर लाइक कुकिंग फॉर कृष्णा, व्हाट ही लाइक्स. When you try to develop a relation, then you try to do everything that pleases other person, isn't it? So what pleases Krishna? Don't envy with anyone. ठीक है. Cook nice food for him, offer to him, do artika, chant very nicely, and engage in devotional service. You will come to this realization that you are a menial servant. ठीक है. वो position आती है. And how to strengthen devotional service? Through sadhu sangha. Mataji, sadhu sangha is the association through your sadhana and sadhu sangha. These 2 things are very important in devotional service. इसलिए प्रभुपाद ने जगह जगह मंदिर बनाए हैं ताकि हम साधु संघ से bereft ना हो सके, हमें उनका संग मिल सके. ठीक है. अभी जैसे कोविड की वजह से we are not able to visit temples and meet devotees, but at least the online sangha we have, we can call devotees, we can talk with them, we can share with them, we can inquire from them. Inquiry, hearing, and service. HIS, I'll tell you. Hearing, inquiring, सर्विस और साधु संग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. श्रवण, फर्स्ट ऑफ ऑल श्रवण, सुनना. इंक्वायरी करना, मतलब प्रश्न पूछना, समझते वे में ही हमने पढ़ा था. इंक्वायरी करना और सर्विस रेंडर करना. डिवोशनल सर्विस और साधु संग. साधु संग, दिस इज हाउ. सो दिस इज द थिंग्स दैट हेल्प यू टू ग्रो एंड स्ट्रेंथन योर डिवोशनल सर्विस. और लाइक साधना, तो साधना वीक नहीं होनी चाहिए. ठीक है. साधना हमारी रहती है, साधु संग में हमारी साधना भी बहुत अच्छी हो जाती है. सो नेवर लीव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. एंड श्रवण नहीं छोड़ना चाहिए. एंड दिस इज इन द इंक्वायरी. सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू strengthen your devotional service. And agar the small formula you want to see, like Rupa Goswami has given in Nectar of Instruction, what? Dhyarya utsaha nishchayat. Enthusiasm, determination, and patience. Keep the patience, have the determination and enthusiasm. Enthusiasm kabhi nahi chhodna chahiye bhakti mein. Be enthusiastic to do every devotional activity and be determined and keep the patience. Result will come. So that's how. And चैतन्य महाप्रभु का देखना हो, थोड़ा फिल्टर अगर लगाना हो, चैतन्य महाप्रभु says, leave whatever is favorable, not favorable for you, Krishna consciousness, and what is favorable, accept that. So that's how. So these are few things you can implement and can carry on with. Is it fine, Mataji? Is it fine? Is it answer to your question? Yes. Sadhu Sangha and sadhana is more important.
how can we destroy the casualities, like we are taking association casually? Vishnu Jana Maharaj says casual means casuality. So actually Mataji, we have to understand the importance of association. पहली बात तो ये, ठीक है, हमें जो association है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि what is association. Casuality in sadhana, okay, casuality in sadhana, that is what Vishnu Jana Maharaj says, casual means casuality. So casual नहीं होना अपनी साधना को लेके. First that is actually, ये पता कैसे आती है? Obviously because we are doing same thing again and again. So it's we are somewhere we are lacking in taste. हमें रुचि नहीं होती है तो we become little casual with the things. ठीक है, जब है बाद में कर लेंगे. Reading है कोई नहीं, बाद में भी तो कर सकते हैं. घर पे ये कहाँ ही जा रहे हैं. Hearing है, ठीक है, आज नहीं की तो क्या हो गया, कल तो की थी मैंने, कल 3-4 घंटे सुना था, आज नहीं सुना तो क्या हो गया. These things happens, you know. So ये कहीं ना कहीं अगर आपके मन में जब भी ऐसा आता है ना, तो somewhere you are actually becoming lazy. और समवेयर यू माइट बी वेयर ऑफ द ऑफेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वैष्णव अपराध कहीं ना कर रहे हो, क्योंकि उसकी वजह से भी हमें ये लैक आ जाता है कि हम लोगों की रुचि नहीं आती है, क्योंकि जब रुचि नहीं होती है ना, सो इट कम्स, जब रुचि टेस्ट नहीं होता है तो इट जनरली कम वी बिकम लिटिल, थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं साधना को लेके. पर एक्चुअली हाउ वी कैन अपलिफ्टेड ऑल द टाइम बाय सीइंग द डिवोटी हु आर वेरी एंथुसियास्टिक. हम लोग तभी कहते हैं ना साधु संग, जब आपके आसपास के डिवोटीज हैं आप उनको देखते हो, अरे यार ये सुबह उठ रहे हैं इतनी ठंड में भी, जब कर रहे हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहे हैं, वो दे आर मेकिंग सच अ बिग फीस्ट फॉर टुडे. जैसे आज गोरकिशोर दास बाबा जी का डिसअपीयरेंस था, तो सम माइट हैव प्रिपेयर्ड वेरी नाइस फीस्ट फॉर गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज. और जैसे प्रॉपर डिसअपीयरेंस लेता, दे आर ऑब्जर्विंग दीज डेज वेरी इंथुसियास्टिकली. किसी ने कीर्तन रखा होगा महाराज बाबा जी के लिए, सो दे माइट बी डूइंग द कीर्तना. सो सीइंग दिस इंथुसियास्टिक एंड let that it comes through the sadhu sangha. जब उनको देख देख के we get enthusiastic, no I don't have to leave my sadhana, ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, अगर इतना कर पा रहे हैं, so this is might be because of their sadhana. So associate with those who are sadhana is strong. जैसे हमारे डेली साधना ग्रुप है, तो अगर आप उसमें देखो तो some people chant extra rounds, some are doing their rounds very early in the morning. So like that you see why this group is there, to encourage us don't become casual. We seeing each other, we become more strengthened. तो वो हमें भी आता है, नहीं कैजुअल नहीं होना, we have to do it. Okay, so that's where you take the inspiration from other fellow devotees. Fine, Mataji? It will help you, Asta? Does it help you? This is what helps me. और the hearing is more important. The more you hear, श्रवणम, as I said, कि श्रवण करने से भी हम लोग समझ पाते हैं कि साधना कितनी important है. And moreover by seeing the fellow devotees. By seeing the fellow devotees, how they are doing, how much they are serious about their sadhana, उनको देख देख के, purity देख के, we immediately like, no, I also want to do the same thing. So that's how it comes. So that's why important, there is the importance of association. Okay. Yes, anything else? और किसी का कोई प्रश्न है? Hare Krishna. Anyone else having any questions? Or any point or comment? Okay, if nothing, so we will be stopping here. This shloka will take up tomorrow. ठीक है, ये वाला श्लोका हम कल ले लेंगे इसको. We'll discuss tomorrow. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Kantara Srimad Bhagavad Gita ki jai. Shri Krishna Arjun Samvad ki jai. Shri Prabhupada ki jai. All the Sambhava devotees ki jai. Thank you so much. See you all tomorrow for Bhagavatam class and the afternoon Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna everyone.